Hello children, welcome to my channel Economics with Purnima Sharma. Again today I am moving forward to the next topic, but before starting to the next topic I want to make a request to you all. Please subscribe, like, comment, share so that I can be motivated and I can continue making video for you every day. So before starting my video on the topic I selected, I want to share a thought with you as usual. And investment आपको पढ़ाया बच्चों. Investment क्या है? Which give return in future. This is known as investment. So investment in education always pays the best interest. If we do the investment in education, it pays the best interest to us. क्योंकि अगर कहीं पे भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न की एक लिमिट होती है. उस लिमिट के बाद हमें रिटर्न नहीं मिलेगा या कम भी हो सकता है. लेकिन जब एजुकेशन नॉलेज में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ईयर आफ्टर ईयर हमारा रिटर्न बढ़ता जाता है. राइट. तो आप लोग भी कंटिन्यू रखें. क्या करना? इन्वेस्टमेंट किसमें? इन नॉलेज. राइट. For enhancing the knowledge so that it will pay best interest to you in future. Thank you. So today the topic which I thought to teach you, this is what? Equilibrium. I already explained to you the equilibrium by two approaches, that is AD and AS approach and saving and investment approach. Right. Now equilibrium only I explained to you where AD is equal to AS. This is what? Equilibrium. Right? I have not explained anything about at what level of income full employment, before full employment or beyond full employment. I only explained till now equilibrium means state of rest, state of balancing where neither income increases nor income falls. It remains in the state of rest. This is what equilibrium. And when it happens, when AD becomes equal to AS. ठीक है. अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम. एक क्वेश्चन आता है कि अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर फंक्शनल है तो क्या इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. दोनों पॉसिबिलिटी है. वो किस पे डिपेंड करती है बच्चों? कि इक्विलिब्रियम किस लेवल ऑफ इनकम पर हो रहा है. तो ये कॉन्सेप्ट मैं 3 डिफरेंट सिचुएशंस में आपको पढ़ाऊंगी कि इक्विलिब्रियम मे स्ट्रक हियर कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, मे स्ट्रक बिफोर रीचिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट एंड मे स्ट्रक AD may become equal to AS beyond full employment level of income. कितनी सिचुएशन बनी बच्चों? 3 सिचुएशन बनी. फुल एम्प्लॉयमेंट, बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट. राइट. अब ये अनएम्प्लॉयमेंट होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि हमारा AD इक्वल टू AS कौन से लेवल ऑफ इनकम पे हो रहा है. ठीक है. तो हम शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल वेयर AD इज इक्वल टू AS. राइट. It may be corresponding to full employment, it may be under employment, it may be over full employment. Understood? So it is an ideal situation. ये क्या है बच्चों? Ideal situation. Ideal situation. When AD planned by household and farm becomes equal to aggregate supply corresponding. This F is too much important बच्चों. जब मैं बोर्ड में कॉपीज वगैरह चेक होती है वहाँ पे हम चेक करते हैं तो वहाँ पे जनरली बच्चे क्या लिखते हैं? एक्सेस डिमांड को व्हेन AD इज मोर देन AS. दिस इज नॉट एक्सेस डिमांड. यहाँ पे F का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है. कि हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है व्हेन AD प्लान्ड बाय द हाउसहोल्ड एंड फर्म टुगेदर इज इक्वल to aggregate supply corresponding to full employment or aggregate demand required to establish full employment. This AD is known as sufficient AD.
right? And equilibrium at this level of income is the full employment equilibrium. अब ये क्या है बच्चों, ADF और सेम ही कर्व क्या है, AD फ्लैट, दोनों ही क्या है, सेम कर्व है, यही ADF है और यही AD फ्लैट है, राइट? तो और EF क्या है, ये एग्रीगेट सप्लाई कॉस्ट। इसमें सबसे पहले आप एक्स एंड वाई एक्सेस बनाएंगे, फिर दोनों एक्सेस पर वेरिएबल्स लिखेंगे क्या ले रहे हैं, फिर डिसाइड करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज OF इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, ठीक है? अब अगर मान लो फुल एम्प्लॉयमेंट पर आउटपुट कितना हो रहा है बच्चों, EF, आउटपुट हो रहा है EF, दिस इज व्हाट, AS एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट OF। अगर ए और वही क्या होगी, ADF मतलब AD रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट। सपोज फर्म्स 100 करोड़ का आउटपुट कर रहे हैं, तो फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन रखने के लिए 100 करोड़ की ही AD होनी चाहिए, तभी वो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो ADF इज ऑलवेज इक्वल टू ASF, ठीक है? तो ये ADF ASF कितना है, EF, और ADF भी क्या है, EF, और प्लान AD भी EF है कि 100 करोड़ का आउटपुट प्लान किया, 100 करोड़ की डिमांड होनी चाहिए थी रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट, और 100 करोड़ ही लोगों ने प्लान कर लिया, ठीक है, क्या खरीदने का, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या हुआ, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। सो दिस E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे AD इज इक्वल टू AS है, और ये इक्विलिब्रियम कैसा है बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, इट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या है ये, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। और ये कैसे सिचुएशन है बच्चों, आइडियल सिचुएशन है, जितनी प्लान की है AD लोगों ने उतनी ही ज़रूरत है, ठीक है? तो इसमें ना तो एक्सेस डिमांड होती है और ना ही डेफिशिएंट डिमांड होती है। ये कैसी डिमांड है, सफिशिएंट डिमांड, क्योंकि जितनी होनी चाहिए उतनी ही प्लान हुई है, राइट? और इस सिचुएशन को बोलते हैं नो गैप सिचुएशन, यानी कि ना तो इन्फ्लेशनरी गैप और ना ही डिफ्लेशनरी गैप, राइट? तो दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड इट इज एन आइडियल सिचुएशन, इट इज नो गैप सिचुएशन, एंड दिस डिमांड प्लान, दिस AD plan is known as sufficient demand required to establish full employment or aggregate supply here corresponding to full employment, right? अब दूसरा इक्विलिब्रियम, 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंची भी नहीं है, राइट? लेकिन इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम के पहुंचने से पहले ही हो गया। AD becomes equal to AS before reaching the full employment. अब इस डायग्राम पे फोकस करो, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल OF, ठीक है? अब यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम पे हमारी AS कितनी है, EF, AS कितनी है, EF, और रिक्वायर्ड AD भी कितनी होगी, EF, दोनों बराबर होंगे, ASF aggregate supply corresponding to full employment and AD required to maintain full employment, दोनों बराबर होंगे। और ये दोनों OF फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर कितने हैं, EF। लेकिन प्लान कितनी कर ली लोगों ने, प्लान हाउस होल्ड एंड फार्म C&I दोनों ने कितना खरीदना क्या प्लान किया, उससे कम। जैसे कि 100 करोड़ सपोज फर्म ने प्लान किया सेल आउट करने का, लेकिन लोगों ने प्लान कर लिया खरीदने का 80 करोड़, 80 करोड़, राइट? तो कितना उसका जो आउटपुट था अनसोल्ड बचा 20 करोड़। तो ये जो इक्विलिब्रियम स्ट्रक हो गया ये यहाँ हो गया, राइट? कहाँ पे, E1 पॉइंट पे, क्योंकि ये लोगों ने प्लान किया RF खरीदने का, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट ही मेजर करना है इसको, ठीक है? और AD प्लान रिक्वायर्ड कितना था, EF, राइट? तो हमारा AD जो था
planned AD will become equal to AS before reaching full employment. This is the full employment level and AD becomes equal to AS at OB level of output before reaching full employment. तो ये इक्विलिब्रियम क्या है बच्चों? This equilibrium is under employment equilibrium. Okay, before reaching the full employment level, AD becomes equal to AS. जब ऐसा होगा तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हुआ और ये लोग क्या हैं, इनको काम ही नहीं मिलेगा. They want to work, they are capable to work, they are willing to work at prevailing wage rate, but economy fail to give job to those people because equilibrium struck before reaching full employment. तो इतने लोग को जॉब नहीं मिलेगा और दिस इज नोन एज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो चाहते हैं काम करना एट प्रिवेलिंग वेज रेट, दे आर कैपेबल ऑल्सो बट दे आर नॉट गेटिंग जॉब बिकॉज इक्विलिब्रियम स्ट्रक बिफोर रीचिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट. तो ये अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट है और ये हो गया यहाँ पे ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, नो गैप सिचुएशन. एडी प्लांट, यहाँ पे क्या होता है, एडी प्लांट, ये एडी प्लांट है, इज लेस देन एएस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट ईएफ और एडी रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट. तो इससे क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड होगी जो आपके नेक्स्ट चैप्टर में, राइट. ये क्या है, डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है. और ये क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप. ये और डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड बच्चों कहीं मेजर नहीं करते हैं, किस पे करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है. तो पहले फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन डायग्राम्स में आप डिसाइड करेंगे, फिर ये डेफिशिएंट डिमांड और जहाँ या एडी प्लांट इंटरसेक्ट हो रही है एएस को, वहाँ उस पॉइंट का जो ये ट्राइंगल होगा दैट इज व्हाट, डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है. अब आ जाइए थर्ड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम. Third type of equilibrium, this is over full employment equilibrium, right? ये again this is over is full employment level of income, right? At OF full employment level of income, AS is MF. What is AS? MF. And ADF is also the same, क्योंकि दोनों सेम होती हैं. AS corresponding to full employment और एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट, बोथ आर सेम. लेकिन प्लान एडी डिसाइड करती है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा या नहीं होगा. अब यहाँ देखो इक्विलिब्रियम हो रहा है, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, लेकिन इतने लोगों को क्या एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रहा है. तो वाज द इन केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, डेफिनेटली the situation of unemployment the economy will face, right? अब यहाँ पे OF क्या है, full employment, MF क्या है, aggregate supply required to establish full employment, और plan AD कितनी हो गई, उससे ज़्यादा 100 करोड़ का फर्म ने प्लान किया, उसको फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए 100 करोड़ ही AD होनी चाहिए, और लोगों ने प्लान किया अपने पास से भी कैसे भी करके कितना, SF खरीदने का कितना प्लान किया, SF, ठीक है. ये आउटपुट है कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन प्लान कितनी हो गया खरीदने का आउटपुट, SF. अब ये इक्विलिब्रियम जो हो रहा है E2, ये कैसा इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है, AD is equal to S, but it is over full employment equilibrium, beyond full employment level when equilibrium struck, right? अब full employment पे मेजर करेंगे, SM क्या है, ये है excess demand. AD is more than AS is not excess demand. Again I am repeating. AD is more than AS corresponding to full employment is excess demand. ये बहुत important है बच्चों, ये 90+ वाले बच्चों को भी नीचे कर देता है, क्योंकि बच्चे ऐप को इग्नोर कर जाते हैं और उनका, क्योंकि यही तो एक चीज़ है जो डिसाइड करती है एक्सेस. क्योंकि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सोचो बच्चों, AD इज मोर देन AS, तो रिसोर्सेज जब है तो रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोडक्शन बढ़ा के हम उसको सेटिस्फाई कर देंगे. तो एक्सेस कहाँ हुई, एक्सेस कब हुई, जब हम आउटपुट नहीं बढ़ा सकते शॉर्ट रन में.
ठीक है, शॉर्ट रन में हम आउटपुट नहीं बढ़ा सकते क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया। तब उसके बाद अगर AD विल एक्सीड AS corresponding to full employment, this excess of AD over AS is known as excess demand, right? तो ये excess demand है SM, और ये क्या है आपका इन्फ्लेशनरी कैप, ठीक है। तो ये आपका हुआ 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। अब बच्चों मैं आपको एक ही डायग्राम में तीनों सिचुएशन बनाऊंगी और तुम्हें बहुत आराम से बहुत इजीली उसकी टेक्निक को सीखना है, ठीक है। क्या सीखना है उसकी टेक्निक। ये तुम्हारा पहले सबसे पहले बनाएंगे x और y एक्सिस, 0 y एंड x, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरिएबल्स, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम। यहाँ पे y एक्सिस पे AD एंड AS, ठीक है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मैंने डिसाइड किया OF इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। अब हम बनाएंगे एग्रीगेट सप्लाई। वी नो इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन मूविंग अप। ये क्या है हमारी AS 45 डिग्री, ठीक है। अब हम फुल एम्प्लॉयमेंट से यहाँ पे राइट, ये क्या हुआ तुम्हारा AD when intersect AS corresponding to full employment, this is full employment equilibrium. E is the point, full employment equilibrium, ठीक है। अब अगर हमें अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बनाना है, डेफिशिएंट डिमांड का डायग्राम बनाना है, डिफ्लेशनरी गैप का डायग्राम बनाना है, तो AD प्लान उसके नीचे ड्रॉ कर देंगे, नीचे, ठीक है। ये कर लिया ADF और ये हो गया AD प्लान, ठीक है। अब AD प्लान ये क्या हुआ, डेफिशिएंट डिमांड, और ये क्या हुआ डिफ्लेशनरी गैप, और ये क्या हुआ अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, उसके नीचे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर आपको ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट का डायग्राम बनाना है या फिर एक्सेस डिमांड का डायग्राम बनाना है, तीनों सिचुएशन, या फिर इन्फ्लेशनरी गैप का डायग्राम बनाना है, तो हम AD प्लान को ऊपर शिफ्ट कर दें, ठीक है। हमने ये किया AD1 AD2, ठीक है। ये क्या हुआ, अब फुल मेजर करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट पे, फुल एम्प्लॉयमेंट OF है, तो ये क्या हुआ तुम्हारा एक्सेस डिमांड, ठीक है। और ये क्या हुआ आपका बच्चों इन्फ्लेशनरी गैप, और ये क्या हुआ E1, E2 is deflationary under full employment equilibrium, E is full employment equilibrium, E1 is over full employment equilibrium, full employment equilibrium। तीनों एक साथ, full employment equilibrium, deficient demand, deflationary gap, under full employment equilibrium, involuntary unemployment, right? This is over full employment equilibrium, this is excess demand, and this is triangle is inflationary gap, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये तीनों इक्विलिब्रियम के प्रैक्टिस करोगे क्योंकि सफिशिएंट डिमांड की ज़रूरत आगे नहीं पड़ेगी, लेकिन अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी चाहिए। तो आज इन तीनों डायग्राम की प्रैक्टिस करो और बताओ कि समझ में आया या नहीं। डेफिनेटली अगर दिल से पढ़ोगे, इंटरेस्ट से पढ़ोगे, तो आई एम 100% श्योर, 110% sure that definitely you will understand the technique. I am just trying to make you learn
to make the your education, to make the studies easier for you. ठीक है, तो have a nice day and please subscribe, watch the video since the beginning till the end to understand better with book and notebook. पढ़ाई की तरह पढ़ाई करो बच्चों, तो आप वीडियो से भी 95 प्लस पहुँचोगे. अगर आप ऐसे से जंप करके देखते हो, फॉर्मेलिटी के लिए देखते हो, तो रिटर्न उतना नहीं आएगा. अगर आप सिंसियरली इन वीडियोस को यूज़ करोगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर 95 प्लस. गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे एंड सब डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, राइट, and share. Watch the video till the end. Have a nice day. God bless you.